Hello everyone, welcome to Quantifies. In this video, we will discuss actual set from CAT 2021. So if you are preparing for CAT and want regular updates, then you can join our Facebook group as well as the WhatsApp and the Telegram group. The description has the links for the same. So this is a set. This was in the slot 2 of CAT 2021. So it says that there are different bars in this diagram and they provide the information about different orders in various categories. So categories mentioned here are art, binders, papers, phone, etc. So the bars are representing the different orders, and these were booked by some customer, some client in the first 2 weeks of September. The color and the pattern of the bar that denote the shipping mode. So basically the green color is for the standard class, the black color is for the second class, and the that pink color is for the first class. Now, the important is that the left-hand point of the bar indicates the booking day of the order, while the right-hand point indicates the dispatch day of the order. And the difference between the dispatch day and the booking day, which is measured in terms of the number of days, that is called the processing time for that order. So basically, if I look at the art category, so this one is the left hand of the bar. The left hand of the bar represent the day on which the booking was done, whereas the right hand, so this green part of the bar, its right hand is right here. So this right hand indicates the day on which the dispatch was done, right? So basically left hand जो है वो booking day के लिए है, and जो right hand है हर एक segment का, हर एक color का, that is for the dispatch day. और इन दोनों का जो difference होगा, that is called the processing time. So basically if you look at the art in the first order in the art category, this order was booked on September 1, you can check it here, and it was dispatched on September 3. So you can say that the processing time was of 2 days. The processing time was 2 days. And for the same category, an order is considered for booking only after the previous order of the same category is dispatched. So जब पिछली कैटेगरी पिछला ऑर्डर जो है उस कैटेगरी में डिस्पैच हो गया, तभी हम अगला ऑर्डर जो है बुक मानेंगे. मतलब यहाँ ओवरलैप्स, यहाँ पे ऑर्डर में कोई ओवरलैप नहीं है. मतलब अगर मैं 8 की बात करूं तो ये पहला ऑर्डर यहाँ पे बुक हुआ, यहाँ डिस्पैच हुआ ऑन द 3rd of September, और उसके बाद अगला ऑर्डर 3rd September को बुक हुआ, जो एक्चुअली 4th of September को डिस्पैच हुआ है. And no two consecutive orders of the same category had identical shipping mode during the this period. So वो आपको क्लियर भी है यहाँ पे बार डायग्राम से कि कोई भी दो कंसेक्यूटिव जो ऑर्डर्स हैं उनका शिपिंग मोड सेम नहीं है. दे डू नॉट हैव द आइडेंटिकल शिपिंग मोड. तो आप देख सकते हो कहीं भी दो कंसेक्यूटिव ब्लैक रीजन्स नहीं है या दो कंसेक्यूटिव ग्रीन रीजन्स किसी भी बार के अंदर नहीं है. ना फर्दर ये जो एग्जांपल बताई है सिर्फ जो मैंने अभी डिस्कस किया उसके बारे में है. सिंपल वही चीज है कि जिस दिन ऑर्डर बुक हुआ और जिस दिन डिस्पैच हुआ, उनका जो डिफरेंस है, दैट डिफरेंस रिप्रेजेंट्स द प्रोसेसिंग टाइम. नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चंस. सो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है दैट हाउ मेनी डेज बिटवीन September 1st एंड September 14 बोथ इंक्लूसिव had no booking from this client considering all the above categories. तो मुझे देखना है कि 1 सितंबर से लेकर 14 सितंबर तक कितने दिन ऐसे थे जहां पे कोई भी बुकिंग नहीं हुई है. सो बुकिंग कहां पे होगी? बुकिंग किसी भी कलर्ड रीजन के स्टार्ट पे होगी. बुकिंग किसी भी कलर्ड रीजन के स्टार्ट पे होगी. जैसे अगर 1 सितंबर को देखूं तो यहाँ बुकिंग हुई है, यहाँ भी बुकिंग हुई है, यहाँ भी हुई है और यहाँ भी हुई है. सो 1 सितंबर को तो बुकिंग्स हुई है. ठीक है. नाउ दिस इज 2 सितंबर, 3rd this is 4, 5 this is in between 5 and 7, this is 6 September, this one is 8, this is 10, 12 and 14, so on. अगर सेकंड को देखें तो सेकंड को यहाँ भी बुकिंग हुई है. ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी नहीं कंसिडर होगा. September 3rd देखो तो यहाँ बुकिंग हुई है, तो ये भी बाहर हो गया. ठीक है, अब September 4 देखा जाए यहाँ पे, so you can see that at this point
बुकिंग हुई है, यहाँ पे भी बुकिंग हुई है। ठीक है, बुकिंग बेसिकली किसी भी कलर्ड सेगमेंट के स्टार्ट पे होनी चाहिए, स्टार्ट पे होगी। तो जैसे अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ तो ये जो लेबल्स में जो ग्रीन वाला पार्ट है, ये एक ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसकी बुकिंग यहाँ पे हो रही है ऑन 4th ऑफ सितंबर, और डिस्पैच उसका यहाँ पे हो रहा है ऑन 12th ऑफ सितंबर। सो 4th को भी बुकिंग हुई है। ऐसे अगर 5 वाली ये वाली लाइन चेक करते हो आप, सो यू विल फाइंड दैट यहाँ पे कोई बुकिंग हो रही है, यस यहाँ पे हो रही है। ठीक है, यहाँ पे अगर 5 वाले में देखोगे तो यहाँ पे ये बुकिंग वाला है, और सिमिलरली यहाँ भी बुकिंग हो रही है, यहाँ भी हो रही है, तो ये भी बाहर हो गया। अब 6 ऑफ सितंबर में देखो तो यहाँ बुकिंग हो रही है। ठीक है, ये वाले पार्ट में बुकिंग हो रही है क्योंकि ये ब्लैक वाला रीजन जो है इसका स्टार्ट है, तो ये भी बाहर हो जाएगा। अब 7th में देखें तो 7th में बुकिंग यहाँ पे हो रही है, तो 7th ऑफ सितंबर को भी बुकिंग हो रही है, ये भी बाहर हो गया। इनफैक्ट 7 सितंबर को यहाँ भी हो रही है। ठीक है जी। अब 8th ऑफ सितंबर देखते हैं। यहाँ पे 8th ऑफ सितंबर में आप देखोगे कहीं पे भी किसी भी बार का स्टार्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ बार का एंड जरूर है, डिस्पैच जरूर हुआ है लेकिन स्टार्ट नहीं है। सो एक दिन तो ये हो गया आपका। 9th को देखा जाए तो यहाँ पे एंड हो रहा है, नो प्रॉब्लम, 9th को भी कोई बुकिंग नहीं हुई। 10th को देखें तो 10th को यहाँ पे डिस्पैच हो रहा है बट बुकिंग कोई नहीं हुई। 11th को भी यू कैन अगेन सी दैट देर इज नो बुकिंग डन, right? And on 12th of September, you can see the orders were dispatched, but there was no booking at all. So ये भी हो जाएगा। 13th को देखें तो 13th को आप देखोगे तो यहाँ पे बुकिंग हो रही है। दिस इज अ रीजन वेयर द बुकिंग हैज बीन डन, राइट? सो 13 को बुकिंग हुई, सो दिस इज आउट। नाउ नेक्स्ट इज 14। अब 14th को देखो फिर कोई बुकिंग नहीं हो रही है, और हमें चेक करना है फ्रॉम September 1 to September 14 बोथ इंक्लूसिव। और यहाँ पे हम देख सकते हैं हाउ मेनी डेज आर देयर इन टोटल, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5 and 6. So basically there were 6 days in the first 2 weeks where the bookings where there was no booking at all. There were 6 days where there was no booking at all. So answer for the first one is 6. Now come to second one. So second question क्या बोल रहा है? सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि what was the average processing time of all the orders in the categories which had only one type of shipping mode? Now this is very easy. एवरेज प्रोसेसिंग टाइम चाहिए मुझे। ठीक है, किन ऑर्डर का चाहिए जहां पे सिर्फ एक ही शिपिंग मोड है हमारे पास। अब एक शिपिंग मोड ढूंढना कोई मुश्किल नहीं है। यू कैन सी यहाँ पे सारे तीनों के तीनों शिपिंग मोड यूज हुए हैं। ठीक है, यहाँ भी तीनों हुए हैं, यहाँ पेपर में भी तीनों हुए हैं, फोन्स पे देखें तो फोन्स में भी फोन्स में 2 हुए हैं। ठीक है, और अप्लायंसेस में भी 2 हुए हैं, यहाँ भी 2 हुए, फास्टनर्स में भी 2 हो रखे हैं, यहाँ भी 2 हैं। सो एक जो शिपिंग मोड है वो एक तो एक्सेसरीज में हुआ है और एक हुआ है एनवेल्व्स में, राइट? सो यही 2 कैटेगरीज हैं जहां पे एक ही शिपिंग मोड जो है that has been used, and question says that we have to find the average processing time for these orders. So अगर आप यहाँ पे देखें एक्सेसरीज में ऑर्डर 1 सितंबर को बुक हुआ था और ये 19th को डिलीवर हुआ। सो बेसिकली फ्रॉम 1st to 19 मैं कह सकता हूँ कि जो प्रोसेसिंग टाइम था वो 18 डेज का था, और एनवेल्व्स में 3rd को ये बुक हुआ और 7th को प्रोसेस हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे जो 7 को डिस्पैच हुआ, 3rd को बुक हुआ, 7 को डिस्पैच हुआ, तो जो प्रोसेसिंग टाइम था वो 4 डेज का था। 18 + 4 22, हमें एवरेज निकालना है। सो डिवाइड बाय 2, एवरेज प्रोसेसिंग टाइम जो यहाँ पे बन रहा है दैट इज ऑफ 11 डेज। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उसमें हमें 4 कैटेगरीज दी हैं और हमें बोला गया है कि इन चारों कैटेगरीज में, कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? 8 है, बाइंडर्स है, पेपर एंड फोन्स। इन चारों कैटेगरीज में हमें ये बोला गया है that we have to arrange them in the decreasing order of average processing time of their orders.
ठीक है, इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है ऑफ द एवरेज प्रोसेसिंग टाइम ऑफ देयर ऑर्डर्स। अब देखो, अगर मैं आर्ट की बात करूं, आर्ट बाइंडर पेपर एंड फोन आर्ट की बात करें, तो यहाँ पे कितने ऑर्डर्स हैं बेसिकली। सो यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5 ऑर्डर्स हैं, और टोटल प्रोसेसिंग टाइम कितना है। देखो, पहला ऑर्डर फर्स्ट को गया था, बुक हुआ था, और लास्ट ऑर्डर 21 को डिस्पैच हुआ। तो यहाँ पे टोटल 20 डेज का प्रोसेसिंग टाइम है फॉर 5 ऑर्डर्स। सो ये बन गया आपके पास, एवरेज बन गया 4 डेज। बाइंडर्स पे देखें तो बाइंडर्स में भी फर्स्ट ऑर्डर जो था वो 1 सितंबर को बुक हुआ, और जो लास्ट डिस्पैच हुआ दैट वाज ऑन 16th, दैट वाज ऑन 16th ऑफ सितंबर, दैट वाज ऑन 16th ऑफ सितंबर। ठीक है, वो 16 सितंबर को डिस्पैच हुआ, और टोटल ऑर्डर्स हैं 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोसेसिंग टाइम है वो है 15 डेज का। तो 15 डिवाइड बाय 4, ये बनेगा हमारे पास 3.75 डेज। पेपर की बात करते हैं। पेपर में हमारे पास ऑर्डर्स 3 है। जो पहला था दैट वाज ऑन 2nd जो बुक हुआ, और लास्ट डिस्पैच हुआ है ऑन 12th। तो यहाँ पे हमारे पास डेज आ रहे हैं 10, प्रोसेसिंग टाइम आ रहा है 10 डेज का, डिवाइड बाय 3, तो ये बन गया 3.33 डेज। और फोन की बात करूं तो यहाँ पे 1 2 3 यहाँ भी 3 ही ऑर्डर हैं, जो स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम द 2nd टिल लास्ट वाला जो जा रहा है वो जा रहा है 17 तक। तो यहाँ पे जो प्रोसेसिंग टाइम है दैट इज अगेन ऑफ 15 डेज डिवाइड बाय 3, तो ये हो गया 5 डेज का। ठीक है जी, अब इनको लगाना है हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे ज्यादा जो आ रहा है वो फोन का आ रहा है, तो सबसे पहले फोन आएगा, फिर उसके बाद आ रहा है आर्ट का, देन इट्स बाइंडर्स, एंड देन कम्स पेपर। सो ऑर्डर बन रहा है फोन आर्ट बाइंडर पेपर। सो फोन आर्ट बाइंडर पेपर मींस ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। Next question says approximately what percentage of orders had a processing time of 1 day? तो कितने परसेंट ऑर्डर्स का जो प्रोसेसिंग टाइम था वो एक दिन का था। तो पहले ये काउंट करना पड़ेगा कि टोटल ऑर्डर्स कितने हैं, हाउ मेनी ऑर्डर्स वर देयर इन टोटल। सो अगर मैं टोटल ऑर्डर्स की बात करूं, टोटल ऑर्डर्स हमें सारे ऑर्डर काउंट करने पड़ेंगे। सो 1 2 3 4 5 यहाँ पे है, ठीक है, 6 7 8 9 यहाँ पे हो गए, देन 10 11 12, देन 13 14 15 16 17, फिर 3 यहाँ पे हैं 20 हो जाएंगे, 3 यहाँ पे हैं 23 हो जाएंगे, 2 यहाँ पे हैं 25 हो जाएंगे, 2 यहाँ 27 29 31 32 33 एंड 35। सो टोटल ऑर्डर्स जो हैं दे आर 35। हमें देखना है इनमें से कितने हैं जिनका प्रोसेसिंग टाइम एक दिन का है। हाउ मेनी ऑफ देम हैव द प्रोसेसिंग टाइम ऑफ जस्ट 1 डे। देखो 1 डे मतलब आपको सिर्फ इतनी लेंथ चेक करनी है, ये लेंथ। एक तो यहाँ पे है, दिस इज द फर्स्ट वन, आफ्टर दैट दिस इज द सेकंड वन जो फर्स्ट को बुक हुआ था 2 सितंबर को डिस्पैच हो गया, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, फिफ्थ ये वाला आएगा, सिक्स्थ ये आएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 दिन का गैप आ रहा है। अगर यहाँ देखोगे यहाँ पे ये 2nd से लेके 4 तक है, ये 4 से लेके 6 तक है। ठीक है, और इसके बाद 7th यहाँ पे आएगा, और बाकी नहीं। तो टोटल 7 ऐसे ऑर्डर्स हैं जो रिक्वायर्ड ऑर्डर्स हैं। वो कितने हैं जितने हमें रिक्वायर्ड है, जिनका प्रोसेसिंग टाइम 1 होना चाहिए, दे आर 7 ओनली। एंड क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट परसेंटेज। सो क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर द परसेंटेज, सो इट इज 7/35 which is nothing but 1/5 which is 20%. So 20% का जो प्रोसेसिंग टाइम था that was of 1 day only, right? So I hope you people got this one. So if you understood the concept, please like this video and subscribe to the channel. Thank you all.